اے حاکموں کے حاکم، حکمرانوں کو تاج بخشنے والے، اللہ کی سرزمین پر مرکز عالم کے سب سے طاقتور بادشاہ، میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہسپانیہ، وینیڈک، جنیوا، فلورنس اور مالٹا کے اتحادی بحری بیڑے نے شاکلینڈ کے امیر البحر آندرے دوریا کی نگرانی میں ایسا بحری بیڑا تشکیل دیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا۔ دشمن کے تقریباً 300 اسلحہ بردار جہاز، 140 بادبانی جہاز، جہازوں میں چپو چلانے والے ہزاروں ملاح اور 55,000 سپاہی سوار ہیں۔ میری نگرانی میں 140 جہازوں پر مشتمل بحریہ ہے۔ فورسا جنگجوؤں کے ہمراہ 20,000 سپاہی اور توپچی ہیں۔ اس صورت میں دونوں اطراف انسانوں کی تعداد فورسا جنگجوؤں کو ملا کر 1,20,000 کے قریب ہے۔ سمندر کی سطح پر ایسے جم غفیر کے مابین مقابلہ کبھی بھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ آقا، میں نے اپنے رئیسوں سے مشاورت کی۔ ترگت جیسا سب سے جرأت مند، صالح جیسا ذہین ترین بھی صلیبی بیڑے کورفیس خلیج سے نکلنے کے انتظار میں تھے۔ ان کا مشورہ میں نے قبول نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تعداد میرے لیے کوئی قیامت خیز نہیں، اللہ کی عنایت ہے۔ کن چیز ہوا کا رخ ہے۔ اگر ہوا نہ رکی تو دشمن اپنے بادبانی جہازوں کو ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمیں نابود کر سکتا ہے۔ حسن، حسن! حکم دیجئے بادشاہ۔ جتنے بھی کاغذ میں سرا سکیں ان سب پر قرآن کریم کی آیتیں لکھوائی جائیں اور ان تمام کو دعاؤں کے ساتھ جہاز کے دونوں اطراف سمندر میں ڈال دو۔ فوراً عمل کیا جائے، دوسرے جہازوں پر بھی یہ خبر پہنچائی جائے۔ ہواؤں کو روکنے کے لیے ہم اپنے رب سے دعا مانگیں۔ معاملہ ختم سمجھو باربروس کا، وہ اپنے کمرے سے ہرگز نہیں نکل پائے گا۔ اس کے تمام جہازوں کو ہم فنا رسید کر دیں گے۔ خداوند کی رضا سے باربروس اور اس کے بحری بیڑے کو آج ہم سمندر میں غرقاب کر دیں گے اور ترکوں کو ایسی دردناک شکست دیں گے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میرے اللہ، آج تک مجھ پر تو نے جتنی عنایت کی ہے، جتنا لطف و کرم کیا ہے، وہی سب عنایات آج بھی نصیب فرما دے۔ کفار کو نیست و نابود کرنا نصیب فرما دے۔ امیر البحر، امیر البحر، ہوا رک گئی ہے۔ رئیسوں، سپاہیوں، شکر ہے ہمارے رب نے ہماری دعائیں سن لی، ہماری دعائیں قبول کر لی۔ چلاؤ چپو میرے شیرو، توپیں داغنا شروع کرو، شروع کرو، تاکہ کفار کا صلیبی بحری بیڑا اسلام کے عظیم لشکر کی طاقت کو دیکھ لے اور عبرت حاصل کرے۔ اللہ اکبر! ہوا کا زور ٹوٹنے پر غنیم کے بادبانی جہاز فوراً ہمارے ہدف پر آ گئے۔ اس سے ہمیں نقل و حرکت میں سہولت ہو گئی۔ میں بحری بیڑے کے تمام جہازوں کا بلکہ تمام بیڑوں کا حکمران تھا۔ آندرے دوریا اپنے جہازوں پر تو کیا، اپنے بازوؤں پر بھی قابو نہ رکھ سکا۔ ہماری دوسری جانب بھاری توپ خانہ تھا۔ توپوں سے نشانہ لے کر دشمن کے جہازوں پر کچھ اس طرح حملہ کیا کہ دشمنوں کے جہازوں کے ٹکڑے ہو کر ہمارے جہازوں کے سامنے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کافر امیر البحر غصے سے بے قابو ہو رہے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ ایک ایسا بھی لمحہ آیا کہ دوریا بزدل کے فرار ہونے کی اطلاع ملی اور وہ پسپائی اختیار کرنے لگا، لیکن وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ کفار کے بحری بیڑے کی ہم پہلے ہی کمر توڑ چکے تھے
क्योंकि तेजी के साथ हमारे बागबानी जहाज आसानी से अपने मुखालिफ तमाम अहदाफ को निशाने की जद में लिए हुए थे। काफिरों के जहाजों को जहाज सम से नुकसान पहुंच रहा था। मैंने तुर्गत रईस को आखिरी हमला करने का हुक्म दिया। उसने कुफार का भरपूर ताक़ुब किया। दुश्मन दो तरफा आग में फंस कर रह गया और दोरिया रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ये मुकाबला दोपहर से शाम तक जारी रहा। दोरिया ने अपने तमाम जहाजों पर रोशनी गुल करने का हुक्म दिया। वो हुक्म बहरी जहाजों के लिए बेगैरती और नहुसत की निशानी माना जाता है, लेकिन तारीकी का फायदा उठाने वाला दोरिया अपने जहाज में वहाँ से बचकर फरार हो गया। अल्लाह की रजा से प्रिवेज में भी हमें अजीम फतह हासिल हुई है आका। इस जहां को आपके अजीम इरादों के सामने एक बार फिर घुटने टेकने के लिए मजबूर करने पर मुझे फख्र महसूस हो रहा है। आपका हकीर गुलाम खिजर खैरुद्दीन। हसन रईस, तुमने ये खुशखबरी सुनाकर मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी जो ख्वाहिश है मांगो मुझसे। खिजर खैरुद्दीन पाशा के सब काबिल रईसों के हमरा इस फतह की खुशखबरी आपको सुनाना ही मेरे लिए एक अजीम तोहफा है मेरे आका। बादशाहों, सूबेदारों, अल्लाह की रजा और आप लोगों की जुर्रत से 3 महाजों पर जारी रहने वाली हमारी ये जंग हमारी फतह के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। सरजमीन तुलुए आफ्ताब से सरजमीन गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का नाम फैलाएंगे। गुरूर और तकब्बुर में आए बगैर इस्लामी लश्कर का ये अजीम झंडा बुलंद से बुलंदतर होता जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मलिका, जैसा कि आपने हुक्म दिया था उसके मुताबिक वज़े और सिलीवरी की जमीनों को फरोख्त कर दिया गया है। नकद सोना हाजिर है। आला, फौरन पोशिया खातून को खबर भेजो कि वो यहाँ आए। उनका कर्ज चुकाकर जमानतनामा वापस ले लो उनसे। खबर भेज दी है मलिका, वो आएंगी। एक खुशखबरी और भी है आपके लिए। खबर आई है कि आका अदरना पहुंच चुके हैं। 10 रोज में वो शान शौकत से पाया तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है खुदा का। आका के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू की जाएं फौरन। आपका जो हुक्म मलिका। आ जाओ। आओ निगार। शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक कारा चलेबी ज़ादे मोहम्मद मुयुद्दीन साहब ने हुरम सुल्तान की जमीन खरीद ली है। बहुत अच्छा किया। मिल्कियत की मुंतकिली के लिए जो भी जरूरी है किया जाए। जो हुक्म शहजादी। जा सकती हो तुम अब। क्या करोगी तुम इस जमीन का? ऐसी जायदाद को किसी और के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकती। आका अदरना पहुंच चुके हैं और तुम अभी तक अशरफी और जमीनों में उलझी हुई हो। खजीना, सब्र से काम लो। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचे हैं। हुरम अब बच नहीं पाएगी। आका से उसे सजा दिलवाऊंगी। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आका इतनी बड़ी मुमलिकत तो संभाल सकते हैं, लेकिन एक औरत को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। वो बचा लेगी खुद को किसी भी तरह, बल्कि उस पर इल्जाम आयद करने की कसूरवार भी तुम्हें होगी। मैंने सोच लिया है, तुम इत्मीनान रखो। सीनियोरा पोशिया, खुशामदीद आए, मेरे करीब आइए। आपकी अशरफियां हासिल हैं, आप इसे ले जा सकती हैं। जो जमानतनामा आपके हवाले किया था उसे सुब्बल आका को वापस दे दीजिए। मलिका, कोई गलतफहमी हो गई शायद। हाँ, कैसी गलतफहमी सीनियोरा?
کاغذات میرے پاس نہیں ہیں. وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بھجوا چکی. کیسی باتیں کر رہی ہیں خاتون؟ ہمارے پاس کچھ نہیں پہنچا. مگر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے ملاقات کے چند روز بعد ایک کالفا میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی آپ نے بھیجا ہے. میں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مجھے بھی حیرت ہوئی تھی. اتنی جلدی کا مجھے اندازہ نہیں تھا. مجھے سونا لوٹا دیا، قرض ختم ہو گیا. میں نے بھی سونا لے کر کاغذات ان کے حوالے کر دیے. ملکہ جانے کیا بات ہے. بادب ملکہ حورم سلطان تشریف لا رہی ہیں. ہٹو سامنے سے. حورم، شہزادی، آپ کے پاس میری ایک امانت ہے. امید ہے کہ مجھے واپس کرنے کے لیے ہی لی ہوگی اپنی تحویل میں. کس چیز کا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں. شہزادی، کھیل کھیلنا بند کریں اب. میرا قرض آپ نے چکا دیا ہے، مجھے معلوم ہے. تم نے 3 براعظموں کے بادشاہ کی سوچا ہو کر وینیڈک کے تاجر خاتون سے قرض لے لیا، اور بے شرمی اور ڈھٹائی سے آ کر مجھ سے اس کا حساب مانگ رہی ہو. شہزادی، وہ میرا قرض تھا. آپ کی اشرفیاں حاضر ہیں. میں نے اپنے خرچ سے بندوبست کیا ہے، اور وہ عورت فقط تاجر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ واقعی؟ کاش تم ذرا تحقیقات کروا لیتی حورم، کیونکہ قرض دینے والی خاتون وینیڈک جو آندرے گریتی کے خاندان سے ہے. تم جانتی ہو کون لوگ ہیں وہ؟ دشمن ہے ہمارے. شہزادی، آپ کی اشرفیاں لائی ہوں. وہ ضمانت نامہ میرے حوالے کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے تم نے دیر کر دی. آقا چند ہی روز میں پایہ تخت میں ہوں گے. ان کے آتے ہی میں صورتحال انہیں بتا دوں گی، کیونکہ ان کے خاندان کا وقار تم نے کس طرح پیروں تلے رونٹ ڈالا وہ جاننا چاہیں گے. جی ہاں آقا، اس نوجوان کو شیخ معشوقی کہتے ہیں. اس کے والد پیر علی کو آپ بھی جانتے ہیں، کافی محترم شخصیت ہیں. لیکن انسان اولاد منتخب نہیں کر سکتا، افسوس ہے. اس کی باتیں بے معنی اور سراسر مبہم ہیں آقا. کیا کہتا ہے وہ پسرے شیخ؟ آپ کو بتاتی زبان ساتھ نہیں دیتی. توبہ توبہ، ہرگز نہیں. احکامات خدا بندی کی منمانی تشریح کرتا ہے، ایمان کی، اسلام کی من گھڑت تشریح کرتا ہے. بازاروں میں، محلوں میں، مکاتب میں، مساجد میں اپنا آواز دے کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. آپ کیوں اس کی اجازت دے رہے ہیں؟ فوراً کیوں نہیں روکا آپ نے؟ اسے چند مرتبہ نصیحت کر چکا ہوں آقا، لیکن ابھی وہ کم عمر ہے، جوان سال ہے، اور میرے آقا اس عمر میں خون جوش مارتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بزرگ والد کا بھی خیال آتا ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اسے پائے تخت سے دور بھیجنے میں ہی فائدہ ہوگا آقا، کیونکہ اسے اتنی اہمیت دینے کا کوئی جواز نہیں. تمہاری کیا رائے ہے لطف پاشا؟ میرے آقا، حاکم صاحب بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. آپ تو جانتے ہی ہیں ایسے مجذوب لوگوں کی باتیں سننے والے غافل موجود ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے بہت زیادہ اہمیت دیں گے. درست فرمایا آقا، درست فرمایا. میں اسے آخری بار نصیحت کر کے اس کے وطن جانے کا مشورہ دوں گا میرے آقا. پائے تخت جا کر اس مسئلے پہ خود توجہ دوں گا، کیونکہ اس کے والد علی صاحب کا بے حد احترام کیا جاتا ہے. آؤ.
मेरे आका अमीरुल बहर खिजर खैरुद्दीन पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो उन्हें। मेरे आका। अमीरुल बहर पाशा, चार सिंध खबर फैल चुकी है, सारा जहां तुम्हारी फतह से गूंज रहा है। सारे आलम के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान के हुक्म से और बहुत सी फतूहात हासिल होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर हमारे सरों पर अमीरुल बहर आंद्रे दोरिया मुसल्लत ना होते, ऐसा कभी नहीं होता। जब हवा हमारे मुआफिक थी, हमला नहीं किया गया। हवा के रुकते ही बारबरोस ने पै दर पै हमले कर दिए और हमें शिकस्त का सामना हुआ। अहले वेनेदिक अपने सिवा किसी दूसरे पर एतमाद नहीं कर सकते। इनके हसद और बेएतमादी के नतीजे में पूरे बहरी बेड़े को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बार बार मेरे हुक्म की नाफरमानी की गई। क्या इसी वजह से आप जहाजों की रोशनी गुल करके वहां से फरार हो गए थे? मैं पहले भी आपकी मदद के बगैर बारबरोस को ट्यूनस गलेता में जजीरे शर्शील की बंदरगाह पर शिकस्त दे चुका हूँ। कब तक अपने माजी को दोहराते रहेंगे आप? अपने जाती मफाद की खातिर ईसाइयों से गद्दारी करने वाला फ्रांस का शाह अब खुश होगा। तुर्कों के पास फकत एक बहरे रोम ही बचा हुआ था और वो भी आप लोगों की वजह से छिन गया। तारीख ईसा मसीह हजरत के मजहब से गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। सल्तनत आलिया मुंतशिर होने के बाद उस सरजमी पर फतह की तगोदो के लिए समुंदर पर हमारे मरहूम बुजुर्गों की तमाम कोशिशों के बावजूद फतह हासिल ना हो सकी। समुद्री शेर खिजर खैरुद्दीन पाशा, तुम्हारा इकबाल दोनों जहां में बुलंद हो। तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। अल्लाह तुम्हारे भी सर को बुलंद रखे। बहरिया हुमायूं के लिए जो चाहो तुम्हारे हुक्म में है। सोना, सिपाही, जो चाहो खुलकर मांगो तुम। रही तो पुर्तगाल और हस्पानिया में कुफार की कैद में रहने वाले मुसलमानों को आजादी जरूर दिलाएंगे अल्लाह के हुक्म से। नई आने वाली कनीजें कैसी हैं? ख्याल रख रही हो ना तुम? सबको देख रही हूँ मलिका, उनकी तरबियत पर खास तवज्जो दे रही हूँ। शहजादी के लिए एक महफिल का इनेकाद करो फिदान, वो काफी दिनों से उदास है। आपका जो हुक्म मलिका। लेकिन सबसे हसीन और सबसे काबिल खातून मुंतखब करना। शहजादे के रूबरू भेजने से पहले मैं उसे जरूर देखना चाहूंगी। जैसे आपकी ख्वाहिश मलिका। अमीर अल बहर पाशा ने फिर से अपना सिक्का जमा दिया। उन्होंने अजीम बेड़े को शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। आंद्रे दोरिया रोशनियां गुल करके भाग गया शहजादे। वो अपनी दानिश में जिसका खादिम है, शहनशाह कहलाने वाला शाकिलैन भी जब आका के आजाब से भाग गया तो वो क्यों ठहरेगा तश्यली? उसे फरार होना ही था। पाया तख्त को फतह करने के ख्वाब देख रहा था गाफिल, उसे जरूर सबक मिल गया होगा। जंग से लौटने वाले सिपाहियों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शाम को हर तरफ चरागां किया जाए। जश्न के दौरान सिपाहियों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। आपका जो हुक्म। अगर कोई और बात नहीं तो आप जा सकते हैं। एक मसला और है शहजादी, अलानिया कारखाने के लिए भेजा जाने वाला सामान वहां तक पहुंच चुका है। कारखाना जल्द दोबारा फाल हो जाएगा। आला। शहजादे, लाला समेत हर कोई समझ रहा है कि कारखाने के मुतालिक आका पूरी तरह बाखबर है। खबर भेज दी गई है उन्हें। वो तो ठीक है, लेकिन आका ने जवाबी मकतूब इरसाल नहीं किया। ये खैर की अलामत नहीं है। इत्मीनान रखो। अगर मुनासिब नहीं समझा होता तो जल्द से जल्द मुझे रोकने की हिदायत करते थे।
محل کے لیے سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں نا؟ پریشان نہ ہو فدان خاتون، کنیزوں کو بھیج دیا ہے، شہزادے کے کمرے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا کرے آج کی شب سب عافیت سے گزر جائے۔ تم باورچی خانے جاؤ، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں۔ لڑکیوں تیار نہیں ہوئی کیا اب تک؟ کیا کر رہی ہو تم سب؟ بہت خوب، اصول و قواعد سمجھا دیے نا تم نے انہیں؟ شہزادی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ سمجھا دیا فدان خاتون۔ رومیسا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں تیار ہوئی؟ ماہ دورہ سلطان نے مجھے محفل میں شرکت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مجھے کیوں خبر نہیں اس بات کی؟ معلوم نہیں، مجھے تو یہی کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لڑکیوں شہزادے کے حضور جانا ہر لڑکی کو نصیب نہیں ہوتا، اس کی قدر کرنا، عقل سے کام لینا، کہنا ماننا، اور قطعاً ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کرنا۔ نیند آ رہی ہے کیا تمہیں؟ لو سلا دو۔ عائشہ ایک کام کرو، تم بھی شہزادی کے ساتھ جاؤ۔ عائشہ خاتون، فرمائیے ملکہ۔ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ تم سے بات کر رہی ہوں، کیا سن نہیں رہی تم؟ معذرت ملکہ، کھو گئی تھی۔ فدان، ملکہ محفل کیسی ہے؟ شہزادے کی طبیعت لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ آپ خاطر جمع رکھیں ملکہ، کنیزیں ایسا رقص پیش کر رہی ہیں کہ شہزادے حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ خوب۔ رومیسا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی مجھے۔ شہزادے کے کمرے میں موجود ہے، دوسری کنیزوں کے ہمراہ رقص کر رہی ہے وہ۔ تم نے بھیجا ہے اسے؟ نہیں ملکہ، وہ تو خود آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ نے اجازت دی ہے۔ دیکھو ذرا اسے، کیسے جھوٹ بول دیا اس نے۔ میں فوراً جا کر دیکھتی ہوں اسے ملکہ، اسے یہاں کان سے پکڑ کر لاتی کوئی ہوں۔ ضرورت نہیں، اگر اسے بھی شوق ہے تو رہنے دو، آخر دوسری کنیزوں کی طرح وہ بھی شہزادے کی مسرت کے لیے وہاں موجود ہے۔ فوراً آؤ میرے ساتھ۔ کیا کوئی مسئلہ ہے فدان خاتون؟ ہونا کیا ہے؟ ملکہ کو تمہارے یہاں آنے کی خبر تک نہیں تھی۔ معذرت فدان خاتون۔ پہلے اپنی قامت دیکھو اور اپنی عادتوں پر غور کرو۔ کیا ہوا؟ کہیں تم شہزادے پر فرفتہ تو نہیں ہو گئی؟
یہی وجہ تھی جو تم سنیورا کے ساتھ نہیں گئی، شہزادے کے لیے ٹھہر گئی ہے نا؟ کیا کرو تمہاری عقل کا، تمہیں کس بات کا غرور ہے؟ تم کون ہوتی ہو شہزادے محترم کی منظور نظر بننے والی؟ ملکہ کی خدمت کرنے پر ہی شکر ادا کرو۔ صرف منظور نظر ہی نہیں فیدان خاتون، شہزادوں کی ماں بھی بنوں گی میں۔ فیدان خاتون، شہزادے محترم نے خاتون کو بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ Hangi hatun o? Söyle. Zeliha Hatun. İşittin mi şehzade anası? Öyle raks etmek de olmuyormuş. Haddini bileceksin. Şimdi hamama git. İyice yıkan paklan. Kılığını kıyafetini değiştir. İşinin başına geç. Bir daha da sakın bana yalan söyleme. Sen de bakma öyle. Şehzademiz için Zeliha Hatun hazır. क्योंकि हम फिर कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। मलिका, ये काम कैसे होगा? शाह सुल्तान ने छुपा दिए होंगे कागजात, उन्हें लेना तो दरकिनार महल में दाखिल भी नहीं हो सकते। आखिर तुम हो किसकी तरफ संबुल आका? मलिका, बिल्कुल आपकी तरफ हूँ, लेकिन सूरत हाल सामने है। मुझ नाजीज का एक मशवरा है, हम उसके बाद का सोचें, क्योंकि अगर आका को मालूम हो गया तो फिर। फारिहा खातून, तुम क्या कहती हो? क्या हम कुछ कर सकते हैं? सुंबुल आगा ठीक कहते हैं मलिका, वहां नहीं जा सकते, लेकिन शाह सुल्तान को अगर बाहर निकाल सकें तो ये मुमकिन हो सकता है। कैसे? वो कागजात देंगी अपनी जान। आपके ख्याल में क्या तरजीह होनी चाहिए? ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी अजीम शहजादी को कैसे मार सकते हैं? कसम से इस बार हम सबको लटकवा देंगी, हम सबके सर कलम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि फारिहा का साथ देना चाहिए तुम्हें। जो हुक्म। काश कि आप उसे कुछ नहीं बताती शहजादी, हुर्रम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसका जो दिल चाहे वो करके देख ले। खजीना सुल्तान के साथ उसने क्या किया भूल गई आप? नहीं भूली गुलफाम, कैसे भूल सकती हूँ? फिक्र मत करो तुम, मैं अपने काम अधूरे नहीं छोड़ती। कल सुबह सवेरे रवाना हो जाऊंगी, अदारना जाऊंगी मैं। ये सब आका को मैं खुद वहां जाकर बताऊंगी। अच्छा ख्याल है आपका। अगर तुम मेरी हमसफर बन जाओ तो सफर अच्छा कट जाएगा। मालूम नहीं आका क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? मैं तुम्हें हमरा रखूंगी, इस तरह हवाखोरी भी हो जाएगी। आपका शुक्रिया शहजादी, खजीना सुल्तान को अकेला कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी हुर्रम का क्या भरोसा। फिक्र मत करो, हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर की जाएंगी। और वैसे भी उसे दूर रखना चाहते हो इस सब से। काफी दुख झेल चुकी है, आजकल उसकी हालत काफी अजीब हो गई है। अक्सर एक खातून आती है, हाफसा है, कमरे में बंद होकर वो दोनों दुआएं पढ़ती हैं। हजरेफ पाशा वापस आ चुके हैं। सुना है निकाह में करामत होती है, अब जल्द अज जल्द ये शादी हो जानी चाहिए। बिल्कुल, वो तो ठीक है, पागलों जैसी बातें करने लगती है कभी कभी। अपनी जान न ले ले, इससे डरती हूं मैं।
उसे मालूम था इसका मतलब। फारिहा खातून, क्या हुआ, क्यों आई हो? मलिका कुछ देर पहले गुलफाम खातून को देखा। अफीफा खातून से बातें कर रही थी। उनके कहने के मुताबिक वो सुबह के वक्त रवाना हो रही हैं। क्या मतलब, कहाँ रवाना हो रही हैं? अदरना मलिका, शाह सुल्तान के हमराह जाएंगी वो। अल्लाह गारत कर दे उसे। शाह सुल्तान ये मौका जाने नहीं देगी अपने हाथ से। पता नहीं वहाँ जाके आका को क्या क्या बताएगी। ये हमारे लिए भी एक मौका है मलिका। वो अदरना जा रही हैं। वो कागजात रास्ते में छीने जा सकते हैं। लगता है कोई और रास्ता बचा भी नहीं हमारे पास। उन्हें रोको जाकर। फौरन सुंबुल आगा को हुक्म तो मिला, सबसे बाएतमाद लोगों को जमा करे। शाह सुल्तान अदरना ना पहुंच सके किसी भी हाल में। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादी, मासरत, लेकिन मैं भी खजीना सुल्तान की तरह ही सोचती हूँ। आका ने आज तक हुरम के खिलाफ किसी बात पर भी यकीन नहीं किया। वो उसका एतबार भी नहीं करेंगे। वो एतबार करेंगे गुलफाम। उन्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे बस में जो हुआ मैं करूंगी। हुरम हर मर्तबा हमसे नहीं जीत सकती, समझ गई तुम? ये उसकी मौत का फरमान है। मैं इसे बजाते खुद आका के हवाले करूंगी। फिक्र ना करें मलिका, इस काम के माहिर लोगों को मुंतखब किया गया है। वो जरूर मसला हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। सुंबुल आगा, दुआ करो कि ऐसा ही हो। मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती। मैं दरअसल ये सोच रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा। शाह सुल्तान इस मसले पर कभी भी खामोश नहीं बैठेंगी। उनके साथ जो कुछ होगा वो जरूर आका को बताएंगी जाकर। नहीं बताएगी वो, इसलिए कि अक्लमंद खातून होने के साथ साथ अनापरस्त भी है वो। तुम जानते हो हम कौन हैं? अगर हमें हाथ भी लगाया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। रुको, आगे ना बढ़ो। या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमाओ। कागजात कहाँ हैं? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ है कागजात, बताओ। हुरम का काम है ये। शहजादी, मदद करो, हमारी मदद करो। बताओ खातून, वरना तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तुम ये नहीं कर सकते। ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया क्या तुम्हें? नहीं। रुको रुको। कहाँ हैं कागजात? छोड़ दो मुझे खुदारा, छोड़ दो। हरगिज इसे कुछ मत करना। छोड़ दो खातून को। दे रही हूँ।
शहजादी खैरियत तो है? इंशाल्लाह शाह सुल्तान की जानिब से कोई बुरी खबर नहीं होगी। नहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं है। मुझे खैर से बुलवाया शहजादी, कोई मसला है क्या? शहजादी आप ठीक तो हैं? निगार खातून, इब्राहिम की कब्र कहाँ है? हरगिज़ इनकार की कोशिश मत करना। कब्र कहाँ है तुम जानती हो, बताओ मुझे, कहाँ है इब्राहिम की कब्र? शहजादी मुझे किस तरह मालूम हो सकता है? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम जानती हो इब्राहिम की कब्र के बारे में। मैंने देखा है तुम्हें। कैसे आपको मेरा ख्वाब देखा था? कब्र के पास आंसू बहा रही थी तुम। शहजादी बिल्कुल नहीं, मेरी औकात ही क्या है? कौन बता सकता है मुझे वो जगह? और ऐसी कोई कब्र है भी या नहीं ये भी नहीं मालूम। अब तक क्यों खबर नहीं आई उनकी? इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। यकीनन कोई मसला हुआ होगा, पता नहीं हमारा काम हुआ या नहीं। मलिका आप फिक्र ना करें, खबर आती ही होगी। जाओ देखो उन्हें, अगर वो फिर से नाकाम हो गए तो याद रखना तुम फारिहा, अपने हाथों से उनकी जान ले लूंगी मैं। मलिका मुबारक हो आपको। सूरत हाल समझ रहा हूं, मगर यूं अकेले सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अपना घर बसाना शर्त है, औलाद भी होनी चाहिए। किस्मत है आका, शायद एक दिन मुझे भी नसीब होगी। इंशाल्लाह। आओ। मेरे आका शाह सुल्तान तशरीफ लाई हैं। खैर होगी इंशाल्लाह, उसे भेज दें। आका। शाहबान, गुलफाम, क्या हुआ? कैसे आना हुआ? आका कयामत हो गई। हम आपके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हम पर हमला किया गया आका। हमारी जान मुश्किलों से बची। कौन जुर्रत कर सकता है इसकी? मलिका, बाली साहब, फौरन उन राहजनों को तलाश करो, उन सबको फौरन मेरे सामने पेश करो, उन सबको। जो आपका हुक्म आका। शहजादी, कहाँ पेश आया वो मनहूस हादसा? हफ्सा से गुजर रहे थे, उसी दौरान हमला किया गया। आका, तुम किस वजह से सफर के लिए निकली? ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? आपको बहुत अहम कागजात दिखाने के लिए रवाना हुए थे आका। आप पर कोई परेशानी आने से पहले मैं खुद लेकर आना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे वो कागजात छीनना चाहते थे, मगर मैंने सब एहतियाती तदाबीर कर ली थी। तुम ये क्या कह रही हो शाहबान? कैसे कागजात? कौन लेना चाहता था? हुरम मेरे आका, हम पर हमले का हुक्म देने वाली वही है, और ये है उसका सबब।
تشریف لا رہی ہیں. میں نے اس کی مدد کرنا چاہی تھی آقا، لیکن حورم نے میری مدد کو قبول نہیں کیا. صورتحال دیکھ کر فوراً میں نے قرض چکا دیا. اس کے بدلے میں مجھے یہ کاغذات ملے تھے. حورم کی مہر دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گئی. وہ کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہے؟ جنگ کے دوران وہ کس طرح وینیدک والوں سے قرض لے سکتی ہے؟ یہ مسئلہ ہمارے خاندان کے وقار کا ہے. تم دونوں پر راہزنوں نے حملہ کیا اور اس سے حرم نے کروایا، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو؟ اور کون ہو سکتا ہے آقا؟ خاص طور پر ان کاغذات کا پوچھا گیا ہم سے. گلفام شاہد ہے اس کی. درست ہے آقا، ان لوگوں نے کچھ اور نہیں لوٹا، صرف کاغذات لے کر ہی واپس چلے گئے. ملکہ. رافیل خاتون، تم کس جرت سے میرے خلاف سازش کر رہی ہو؟ میں نے کوئی بھی سازش نہیں کی ملکہ. رافیل خاتون، مجھ سے مزید جھوٹ مت بولو آپ. لگتا ہے شاہ سلطان نے تمہیں خرید لیا ہے. تم نے ابتدا ہی سے میرے خلاف سازش کی ہے. اشرفیوں کا چوری ہونا، بعد میں اس خاتون کا مشورہ دینا، یہ سب کچھ ایک سازش تھی میرے خلاف. ملکہ میں اگر تم یہاں سے زندہ واپس جانا چاہتی ہو تو مجھے سب کچھ سچ بتاؤ. یہ تمہیں شاہ سلطان نے کرنے کو کہا ہے نا؟ میں قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا ملکہ. لیکن کیا خاتون؟ بتاؤ. سینیورا پورشیا، شاہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی اور وہ بہت ڈر گئی. وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا کروں. میں نے آپ کے پاس جانے کے لیے کہا اسے کہ حرم سلطان تمہیں بچا لیں گی، یہ کہا. رافیل خاتون، تم یہ سب مجھے آپ بتا رہی ہو. لیکن میں تو سمجھی کہ وہ آ چکی ہوگی آپ کے پاس ملکہ. لگتا ہے اس نے شاہ سلطان کو ترجیح دی. سنبل آغا، وہ خاتون اس دنیا کے جس بھی کونے میں چھپی ہے اسے لے کر آؤ میرے پاس فوراً. یہ دونوں شاہ سلطان کے خلاف میری سچائی کی گواہی دیں گی. کچھ اور نہیں کہنا تو تم جا سکتی ہو. تم بھی گلفام. یہی بتانا تھا آقا. معذرت، یہ سب بتا کر میرا مقصد آپ کو رنجیدہ کرنا نہیں تھا، لیکن حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری تھا. میرے آقا، سب سے بھروسے کے آدمیوں کو بھیج دیا ہے. اطراف میں تحقیقات کر کے ان رازنوں کا سراغ لگا لیں گے. مال کوچو فوراً پائے تخت جاؤ. حرم سلطان کو لے کر میرے پاس آؤ فوراً. جو آپ کا حکم ہو آقا. میرے آقا. ملکہ. کیا ہوا سنبل؟ مل گئی وہ وینیدک والی خاتون؟ نہیں ملی ملکہ، اسے زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا. لگتا ہے شاہ سلطان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ. اسے لازمی تلاش کرنا ہوگا سنبل. ہم سے پہلے کوئی اور نہیں پہنچے اس تک. فکر نہ کریں ملکہ، اسے اب کر آقا ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں. خاص طور پر بندرگاہوں کی نگرانی ہو رہی ہے. وہ یقیناً مل جائے گی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. میں تخلیہ چاہتی ہوں، کچھ سوچنا ہے مجھے. وہ کیوں پریشان کھڑے ہو؟ بالی صاحب آئے ہیں، آپ کے منتظر ہیں. وہ ملکہ. مالکوچو، خوش آمدید. کسی اہم مسئلے کا بتایا آپ نے؟
आका और शहजादों की सेहत ठीक होगी अल्लाह के हुक्म से। सेहत ठीक है मलिका। मलिका, आपको फौरन नजरना ले जाने का हुक्म मिला है। इसका क्या मतलब? कोई मालूमात नहीं है मलिका। आका फौरन आपसे मिलना चाहते हैं। Madem öyle ben hazırlanayım. आपको मुबारकबाद देता हूँ शहजादी, पूरा मंसूबा तैयार किया था माशाअल्लाह। लेकिन एक चीज भूल गई आप, हुरम की जहरीली जबान। इस मर्तबा अपने दिफा के लिए उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आपका उसके लिए क्या जज्बात रखते हैं ये हर किसी को अच्छी तरह मालूम है। बरसों से आका के दिल में उसने अपना घर बना रखा है। वो उनके माथे की लकीर बन चुकी है। सारी दुनिया भी मिलकर उसका बाल बिका नहीं कर सकती। कैसी बात कर रहे हैं आप? उसकी तरफदारी कर रहे हैं क्या? माजी सामने है शहजादी। हुरम सुल्तान यकीनन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी और इस मुसीबत को अपनी अयारी से टाल देगी और आपको भी आका की नजरों में खजीना सुल्तान की तरह रुसवा करके छोड़ेगी। एहतियात कीजिएगा। जंगल में कब्र दिखी थी। कब्र के पास एक खातून बैठी थी। उसका चेहरा देख लिया क्या आपने? उस खातून को जानती हूँ मैं। दूसरे दिन बुलाया था उसे अपने पास, ये पूछने के लिए कि वो कब्र की जगह जानती है कि नहीं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मेरे रब ने आपकी दुआएं कबूल करके आपको रास्ता दिखा दिया है शहजादी। ये खातून जो भी है आपसे झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? इसमें कोई शक नहीं। वही आपको मरहूम पाशा मोहतरम की कब्र तक ले जाएगी। बादब मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी। माल को चुबाली साहब, आखिर आप लौट आए। मैं लौट आया हूँ शहजादी। आफियत से होंगी आप खुदा के फजल से। हकीकत में क्या मेरी फिक्र है आपको, या फिर ये बात इखलाकन कह रहे हैं? महीनों से तो आपने मुझे याद भी नहीं किया होगा, क्यों है ना? जबकि मेरी कोई रात आपको याद किए बगैर नहीं गुजरी, मगर आपको तो मेरी परवाह तक नहीं। शहजादी, यकीन करें आप पर क्या बीत रही है, क्या महसूस कर रही हैं, सब कुछ मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आपको दुख नहीं देना चाहता। मलिका। मेहरमा, तुम बयासत के साथ पहले जाओगी। मैं जहांगीर के साथ तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मलिका, बहुत माजरत, लेकिन आका ने सिर्फ आप ही को तशरीफ लाने का हुक्म सादिर किया है। क्या हम नहीं आएंगे? मेहरमा, तुम भाइयों को लेकर महल जाओ। अफीफा खातून, हरम और मेरी औलाद आपकी अमानत में है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मलिका, मैं बजाते खुद ख्याल रखूंगी इनका। सुंबुल। मलिका। सुंबुल आखा, तुम यहीं ठहरो, मैं पहले मालूम कर लूं कि क्या हुआ है। बाद में सोचेंगे कि क्या करना है हमें। आपके हुक्म का गुलाम हूँ मलिका। मलिका, हमें फौरन चलना होगा। मलिका।
मेहर माँ, अपने भाइयों से दूर मत होना बिल्कुल भी। जल्द ही आका के साथ वापस आ जाऊंगी मैं। आ जाओ। शहजादी, तुम्हें देखकर खुशी हुई निगार। मिलना चाहती थी मैं तुमसे। आपको खबर मिल गई क्या? तुम किस खबर की बात कर रही हो? हुरम सुल्तान आका के हुक्म पर अदरना के लिए रवाना हो चुकी हैं, और वो भी तन तनहा। लगता है शाह सुल्तान अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई कामयाबी होगी। जंगल की सैर करने के बाद वो आका के साथ वापस आ जाएगी। शाह सुल्तान पूरी तैयारी से गई हैं। इस बार बचना आसान नहीं होगा शहजादी। देखते हैं। आप मुझसे क्यों मुलाकात चाहती थी शहजादी? तुमने आखिर मुझसे क्यों झूठ बोला निगार? इब्राहिम की कब्र कहाँ है तुम अच्छी तरह जानती हो, मगर मुझसे छुपाया तुमने। क्या मुझसे माजी का इंतकाम ले रही हो तुम? हरगिज नहीं शहजादी, इंतकाम का मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर बताओ मुझे कहाँ है? शहजादी, आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मैं जानती तो और कुछ नहीं तो दुआ मांगकर उनकी कब्र पर पानी ही डाल देती। तुम एक बार फिर दरोह कोई से काम ले रही हो निगार। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो तुम जा सकती हो। निगार खातून का ताकुब करना है तुम्हें। किससे मिलती है, कहाँ जाती है, हर बात मालूम करके बताओ मुझे। जो आपका हुक्म शहजादी। आओ। शहजादे, आका की तरफ से कोई खबर नहीं आई? लश्कर वापसी की राह पर गामजन है। अदरना पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों में पाया तख्त तक पहुंच जाएगा। खैरियत, कोई मसला है क्या? इजमेर के खुले समंदर से एक और तिजारती जहाज अगवा हो गया है। क्रिस्टोवाओ डी गामा नामी पुर्तगाल कज़ाक का नाम लिया जा रहा है। ये हाथ से कब थमेंगे तश्यली? कौन है क्रिस्टोबा? वो कैसे जुर्रत कर सकता है जहाज को अगवा करने की? मशहूर पुर्तगाली अमीरुल बहर वास्को डी गामा का बेटा है शहजादे। खैरुद्दीन पाशा की गैर मौजूदगी से फायदा उठाया है काफिर ने। उसे रोकना पड़ेगा। फौरन कोई हल ढूंढना होगा हमें। आयशा खातून, क्या कर रही हो तुम यहाँ?
وہ دراصل ملکہ کے ملبوسات بھیجے ہیں درزی نے، میں انہیں تیار کر کے اندر لے جا رہی تھی۔ کل رات شہزادے کی محفل میں شریک ہوئی تھی نا تم؟ ملکہ نے مناسب سمجھا تو مجھے شرکت کی اجازت دی۔ کسے دھوکہ دے رہی ہو تم اپنی مرضی سے تیار ہو کر گئی تھی وہاں۔ میں انہیں رکھ کر آتی ہوں۔ خود پر اتنا اعتماد مت کرو تم جو کرنے کی کوشش کر رہی ہو جانتی ہوں میں۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت دے دوں گی میں، تمہیں اپنی حد میں رہنا ہوگا، سمجھ گئی میری بات؟ ہرگز زیادہ امید نہیں رکھنا تمہاری نگرانی کروں گی، یاد رکھنا۔ خاطر جمع رکھیں عائشہ خاتون، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ سب مشیروں کو دربار میں طلب کرو، اس مسئلے پر ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا جو حکم شہزادے۔ آؤ۔ شہزادے۔ والدہ خوش آمدید۔ شہزادے میرے لیے کوئی اور حکم نہیں تو میں تم جا سکتے ہو، تیاریاں شروع کر دو۔ آپ کا جو حکم ملکہ۔ خیریت تو ہے مصطفیٰ؟ ایک اور تجارتی جہاز قزاقوں نے اغوا کر لیا ہے۔ ایسے واقعات کی زیادتی کی وجہ سے میں بہت فکر مند ہوں، کچھ کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ میرے شیر، یہ مسئلہ خضر خیر الدین پاشا کی ذمہ داری ہے۔ اب سفر ختم ہو چکا ہے، وہ خود اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ اس صورتحال کے متعلق انہیں ضرور معلومات بھیجوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ مجھے روکنا ہوگا۔ تم صورتحال بتا دو کافی ہے، اور ویسے بھی کارخانے والے مسئلے پر اب تک تشویش ہے مجھے۔ والدہ آپ حرم پر توجہ دیں، امور سلطنت میں دخل اندازی نہ کریں۔ کیا کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ؟ سمندر میں جا کر قزاقوں کے ساتھ جنگ کرو گے کیا؟ یہ ممکن ہے کیا؟ کوئی شہزادہ اکیلا سمندر میں جا کر کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ آقا کو خبر دیے بغیر ایک کشتی پر سوار ہونا بھی منع ہے۔ تمہارے بابا کو تمہارے خلاف بھڑکانے والے بے شمار لوگوں کی موجودگی میں تم کیسے اس بارے میں سوچ سکتے ہو؟ اصول و قواعد کی پاسداری ناگزیر ہے، سمجھ گئے میری بات؟ قطعاً اصول و قواعد کی خلاف ورزی تم مت کرو مصطفیٰ۔ آدب! آئیے ملکہ۔ ملکہ آپ کی آمد کی خبر نہیں تھی، خوش آمدید، عزت بخشی آپ نے۔ شکریہ رستم پاشا۔ فارحہ تم یہی ٹھہرو۔ آپ کا جو حکم ملکہ۔ خیر تو ہے خاتون، کیا مسئلہ ہے؟ خرم آخر پہنچ ہی گئی۔ رستے میں ہر بات خوب سوچ لی ہوگی، پورا منصوبہ تیار کر لیا ہوگا اس نے، ہر چیز سے انکار کر کے آپ پر الزام عائد کر دے گی۔ وہ مجھ پر کیسا الزام عائد کرے گی؟ سارے ثبوت سامنے ہیں۔ یہ سب ایک طرف، ہم پر حملہ کروا کر اس نے غلطی کر دی۔ آپ بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی نا؟ بالکل، وہ کاغذات لینے کے لیے حملہ کروائے گی، مجھے یقین تھا۔ مجھے بھی اسی وجہ سے آپ ساتھ لے کر آئیں، ایسا ہی ہے نا؟ واقعے کی گواہی کے لیے۔ مجھ سے خرم کو برباد کروانا چاہتے تھے تم لوگ، وہی کر رہی ہوں۔
सुलेमान, मेरे जाने मन सुल्तान, आखिर लौट आए। ये मेरी खुश नसीबी है कि आपका दीदार नसीब हुआ मुझे। अब मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं। सुलेमान, पहले एक निहायत अहम हल तलब मसला है हुरम। शाहबान आई है, तुम्हारे मुतालिक बाज़ अहम बातें बताई हैं उसने। ग्रीती खानदान से मंसूब बेनेडिक्ट की खातून से कर्ज लिया तुमने। दरअसल इस कागज पर मौजूद तुम्हारी मोहर इस बात का सबूत है। और उससे भी अहम, शाहबान और गुलफाम खातून पर हमला करवाया तुमने, उन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया। दुरुस्त है क्या? बताओ हुरम, क्या मतलब है इन सब बातों का? फौरन वजाहत दो। जैसा कि आप समझ रहे हैं बादशाह, सूरत हाल ठीक नहीं। मलिका के खिलाफ साजिश की गई है। तुम जिन कागजात का जिक्र कर रही हो, अगर वो आका के पास हैं तो हुरम सुल्तान की मदद करना दुश्वार है। असल मसला रास्ते में रोकने का है बादशाह। शाह सुल्तान ने असल चालाकी वहां दिखाई और हमें खबर भी ना हुई। अगर मुझे पहले खबर मिल जाती, मैं कोई ना कोई हल निकाल लेता। लेकिन जो होना था हो गया। आगे का सोचना चाहिए अब हमें। आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं सुलेमान? मैं अपने दिफा में अब क्या कह सकती हूँ? आपके दिल में पहले ही गलतफहमी पैदा हो चुकी है। लगता है कि दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो गया। यहां इसीलिए बुलवाया है तुम्हें ताकि तुम अपनी दिफा में कुछ कह सको हुरम। सफर की वजह से माली बहरान पैदा हो गया था। कनीजों के, आगाओं के वजीफों की अदायगी नहीं हो पा रही थी कई महीनों से। तो मैंने राफेल खातून से कर्ज ले लिया। लेकिन अब क्या हिकमत थी कि वो सोना हरम में पहुंचने से पहले ही चोरी हो गया। किसने चुराया? तुम्हारा ख्याल है शाह सुल्तान का काम है ये? और कौन हो सकता है? सुलेमान, आपकी गैर मौजूदगी में मुझ पर हमला किया गया। खजीना सुल्तान के साथ मिलकर उन्होंने मेरे खिलाफ खेल खेला। हरम में बगावत के लिए अशरफियों को जानबूझकर चोरी करवाया गया। शाहबान तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी अना की खातिर उसे कबूल नहीं किया। बाद में अपने खर्च से वजीफा अदा करना चाहा उसने, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए उन अशरफियों की पेशकश की गई थी। मैं सुल्तान सुलेमान की ज़ौजा की हैसियत से आखिर कैसे कबूल कर सकती थी इस पेशकश को? हमारे खिलाफ बरसरे पैकार दोचो खानदान से तो कर्ज ले सकती हो तुम, लेकिन मेरी हमशीरा से लेना गवारा नहीं तुम्हें। सुलेमान, मेरा यकीन करे वो कौन है मुझे मालूम ना था। राफेल खातून ने मुझे उसका मशवरा दिया था। इस वजह से मैंने एतमाद किया। मैं अपनी खता कबूल करती हूँ। वो जो कोई भी थी, मुझे तहकीकात करवानी चाहिए थी, लेकिन वक्त नहीं था मेरे पास सुलेमान। हरम में बगावत ना हो जाए इसलिए मैं फौरन वजीफा अदा करना चाहती थी। बाद में वो रकम अपने पास से अदा कर देती मैं। तुम्हारे पास कहां से आती इतनी रकम? तोहफे में दी गई जमीन और हवेली को फरोख्त करके इंतजाम करते हैं। सुलेमान, सफर के दौरान इन मसाइल में आपको नहीं उलझाना चाहती थी मैं। इस वजह से खुद ही हल करना चाहा मैंने।
सुलेमान मेरे खिलाफ साजिश की गई है। उस वेनेदिक खातून के साथ मिलकर ये काम करने वाली शाह सुल्तान ही है। खातून ने जैसे ही मुझसे वो कागजात लिए फौरन शहजादी तक पहुंचा दिए। इसीलिए तुमने उनका रास्ता रोकने का हुक्म दिया था, ताकि कागजात अपने कब्जे में ले लो और फिर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत न रहे। नहीं, सरासर मन घड़त इल्जाम है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल। फिर कौन कर सकता है हुरम? अगर वो लुटेरे होते तो जवाहरात की चोरी करते कागजात का हरगिज नाम न लेते। आप ये सब कैसे कह सकते हैं? आप सिर्फ वो जानते हैं जो शाह सुल्तान ने बताया है आपको। हो सकता है कोई हमला हुआ ही ना हो उन पर। सुलेमान, मेरी जान आप हैं, मेरी जिंदगी है। हरगिज़ यकीन मत करें उनका। सिर्फ हमें अलग करने के लिए जानबूझकर ये खेल खेला जा रहा है। आगा, पाए तख्त रवानगी की तैयारियां शुरू की जाए। मेरी बात पर यकीन करें, ये सब एक साजिश है। पहले खजीना ने सिर्फ तुमसे इंतकाम लेने के लिए अपने आप को ज़दोकोब किया और तुम पर इल्जाम लगा दिया, और अब शाह सुल्तान ने भी वैसे ही किया। लगता है खजीना पे यकीन ना करके मैंने गलती की थी। सुलेमान, तुम यहीं रहोगी हुरम। आका, वालिदा आई है क्या? वालिदा, सलीम, मेहमद, वालिदा क्या हुआ आपको? आप ठीक नहीं लग रही। ठीक हो मेरे बेटे, तुम दोनों को देखकर बेहतर हो गई हूँ। आंखें तरस गई थी देखने के लिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आए। शाहबान, गुलफाम, फौरन तैयारी शुरू करो, पाए तख्त जाना है। आका, हुरम की आमद का इल्म हुआ? हुरम यहीं ठहरेगी।
शहजादी, सुन लिया आपने? शुक्र है खुदा का गुलफाम, आका का ये फैसला खैरियत का वसीला होगा हम सबके लिए। आमीन। क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे वालिदा? कुछ हुआ है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरे बेटे, इस वजह से। आप बीमार हैं? क्या हुआ आपको? परेशानी की बात नहीं है, यहाँ कयाम करके जंगल की ताजा हवा से खुद को बहलाना चाहती हूँ मैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। हम भी यहीं रहेंगे आपके साथ, बाद में आपके साथ ही जाएंगे। नहीं, तुम दोनों आका के साथ पाया तख्त जाओगे। शहजादे की हैसियत से आका के हमरा रहने की जरूरत है। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, वापस आकर तुम लोगों से सफर की बातें सुनूंगी। मलिका, आका ने शहजादों को फौरन अपने पास बुलवाया है। आका को इंतजार मत करवाओ। वालिदा। सलीम मेरे बेटे। मेहमत, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी अमान में है, उन्हें कोई भी परेशानी मत होने देना, कभी भी किसी को इजाजत मत देना कि कोई उन्हें दुख पहुंचाए। मेरी ये बात याद रखना हमेशा। इत्मीनान रखिए वालिदा। अगर ऐसा हादसा हो ही गया था तो वक्त पर खबर देनी चाहिए थी मुझे। राजदानों का सुराग लगाकर किसने भेजा है ये मालूम कर लेता। आका ने यही मुनासिब समझा होगा। तुम्हें सब बताने पर मजबूर नहीं हूं मैं। हद में रहो, तुम्हारे सामने एक पाशा है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, खूब जानता हूं मैं, फिक्र मत करो। बादब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मालकोचू, तैयारी मुकम्मल है क्या? जी हाँ आका, आप जिस वक्त मुनासिब समझे हम रवाना हो सकते हैं। आला, चले। लुत्फो पाशा, तुम शाहबान और गुलफाम के हमरा जाना। रुस्तम, तुम शहजादों के हमरा हमारे पीछे रहना। आका माजरत, मैं समझ रहा था आप हुरम सुल्तान के हमरा वापस जाएंगे। तैयारियां इसी लिहाज से की गई हैं। मैंने जो कहा वो सुना नहीं पाशा? जो कहा है वो करो। आपका जो हुक्म। आइंदा आका के फैसले पर बहस ना करना। क्या जानते नहीं हो, शाह सुल्तान की जान लेने की कोशिश की थी गद्दारों ने। मैंने भी सुना है पाशा, मुझे अफसोस हुआ। शुक्र है अल्लाह ने शहजादी को बचा लिया। अल्लाह अपने नेक बंदों की जरूर हिफाजत करता है, और याद रखना गुमराह मुनाफिकीन को जहन्नुम की आग में झोंक देता है। शहजादी के साथ जिसने भी ये किया है इसकी सजा जरूर भुगतेगा वो, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। सूरत हाल से रुस्तम को आगाह करो, फौरन तलाश करे उस वेनेदिक वाली खातून को। यहाँ पहुंचते ही मैंने उन्हें मसला बता दिया था मलिका। वो खातून जहां भी होगी उसे ढूंढ निकालेंगे वो। लेकिन इसका अब कोई फायदा होगा क्या? उनके दरमियान इत्तेहाद होने का मालूम हो जाए तो कम अज कम आका को शाह सुल्तान की इस घिनौनी साजिश का यकीन तो आ ही जाएगा। बाहर जाओ खातून। हुरम, शहजादी, अगर आप मुझे अलविदा कहने के लिए आई हैं तो जहमत ना करें, क्योंकि ये जुदाई चंद रोज की है। तुम्हारे लिए अपने किए की सजा भुगतने का वक्त आ गया है हुरम। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ शुरुआत है सजा की। शहजादी, मैं आपकी तरह पाए बाग की रविशों पर टहलती नहीं चली आई। मेरे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ मैंने भुगता है, जितने सदमे झेले हैं, अगर आप झेल लेती तो अपने कदमों पर खड़ी न रह पाती। तुम कहां से आई हो ये सबको मालूम है।
रुतेनिया के रूसी गुलाम हो। क्या था असल नाम? अलेक्सेंड्रा लारोसा? अब मेरा नाम हुरम है शहजादी, हुरम सुल्तान। सुल्तान सुलेमान की निकाह याफ्ता ज़ौजा हूँ और 5 बच्चों की माँ भी हूँ मैं। इतनी आसानी से मुझे शिकस्त नहीं दे पाएंगी आप। तुम भी मेरी तरह ये जानती हो हुरम के जमाना तुम्हारे कारनामे सुनाएगा, मगर यहाँ आका से दूर रहकर तुम क्या कर पाओगी? नजरों से गिरने वाला दिल से भी निकल जाता है, याद रखना तुम। शहजादी ये भूल जाएं कि आपका ये ख्वाब कभी पूरा होगा। किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि मुझे मेरे आका के दिल से निकाल दे, और ना ही ये कभी मुमकिन हो सकता है। हुरम, ख्वाब खत्म हो गया, आंखें खोल दो। आका की जन्नत से निकाली जा चुकी हो तुम। तुम्हारी जगह अब जहन्नुम है। तुम्हारी अकल की दाद देनी चाहिए शाह सुल्तान। हुरम को जिला वतन करवा दिया। उसकी हालत देखने वाली थी, आंखों में बहुत खौफ था। पहली बार उसे इस कदर लाचार देखा। इससे भी ज्यादा बदतर हो उसके साथ। वो महल में जब से आई है तब से कयामत ही बरपा करी जा रही है। इंशाअल्लाह अब कभी वापस नहीं आएगी। आमीन। लेकिन आका ने फैसला किया कैसे, मुझे हैरत हो रही है। उन्हें शक में मुब्तला करने वाली कोई खता नहीं की मैंने, इसलिए। रुस्तम पाशा भी जब आए तो काफी परेशान थे, जैसे उनके बाजू कट गए हों, खामोश थे बहुत। उसकी बारी भी आने वाली है, वो सोच रहा होगा हुरम के साथ मिलकर हम मिलेगी। रुस्तम पाशा हवा के रुख के साथ अपना रुख बदलना जानता है, लेकिन पहले वो हुरम सुल्तान को बचाने की कोशिश करना चाहेगा। हुरम को अब कोई नहीं बचा सकता, वो बदतर हाल में है। लेकिन ये काफी नहीं होगा, उसे कभी सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे हम। कतन आका से कोई राब्ता नहीं रखने देंगे। अपने झूठ से, साजिश से आका को धोखा देकर उनके दिल के गुदाज होने में रुकावट बनेंगे हम। बाहर फतह का जश्न बरपा है, चाहो तो मेरे हमराह चलकर देख सकती हो। वालिदा नहीं तो कैसा जश्न बाबा? समझ नहीं सकी बिल्कुल। पहले वालिदा को अदरना बुलाया आपने, फिर उन्हें वहां अकेला छोड़ के वापस आ गए। बरादर ने तबीयत खराब होने का बताया, लेकिन मैं जानती हूँ वो ठीक हैं। ऐसा क्या हो गया? ये तुम्हारा मसला नहीं है मेहरमा, ये मेरे और तुम्हारी वालिदा का मामला है। ठीक है, फिर आप इजाजत दें, मैं भी वहीं चली जाती हूँ। उनका वहां यूं अकेले रहने से आप तो मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन मैं हरगिज़ भी नहीं। कोई भी कहीं नहीं जाएगा मेहरमा, कमरे में जाओ। कम से कम इसका सबब ही तुम्हें मुझे कमरे में जाने का कहा है।
शहजादी। बाली साहब, आपको देखकर खुशी हुई। आका ने तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आपको तो यकीनन मालूम होगा। वालिदा कैसी हैं? आप इत्मीनान रखें शहजादी, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। फिर क्यों हमरा वापस नहीं आई? आका ने यही मुनासिब समझा होगा। अच्छा, लेकिन क्यों? आका ने क्यों ऐसा फैसला किया? शहजादी बहुत माजरत, लेकिन मुझे इस मामले के मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। उदास मत हो, आप बिल्कुल तसल्ली रखें, मलिका जरूर वापस आ जाएंगी शहजादी। शुक्रिया बाली साहब। अगर वालिदा के बारे में कोई मालूमात मिले तो मैं जानना चाहूंगी। जी जरूर। तुम्हारी नजर रुस्तम पर होनी चाहिए निगार। हुरम ने जरूर उसे कोई हिदायत दी होगी। वो सिनियोरा पोर्शिया को ढूंढ रहे हैं शहजादी, लेकिन उसका मिलना नामुमकिन है। फिर भी तदबीर कर लेनी चाहिए हमें। मरजान आगा खाबका के तरफ किसी को नहीं आने देगा। हुरम चाह के भी अब कुछ नहीं कर पाएगी। शहजादी, आपकी जहानत को दाद देती हूँ मैं। अगर और कुछ नहीं कहना है तो तुम जा सकते हो। शहजादी, एक मसला और भी है, लेकिन कैसे बताऊं आपको? कसम से मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। बात को तूल मत दो और बताओ खातून। खजीना सुल्तान के पास एक खातून आती हैं, आप भी जानती हैं उन्हें। दुआ पढ़कर ख्वाब में इशारा मिलने वाला तावीज दिया है शहजादी को। आखिर उसकी क्या जरूरत पड़ गई? मरहूम पाशा की कब्र को ढूंढने के लिए। ख्वाब में उन्होंने कब्र के पास मुझे देख लिया। कई दिनों से वो इस बारे में सवाल जवाब कर रही हैं मुझसे। बताया नहीं होगा तुमने? कैसे बता सकती हूँ, लेकिन मेरी निगरानी पर एक आगा तैनात है। मुसलसल ताकुब करता है मेरा वो। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र देना। निगार, तुम कतन कब्र पर नहीं जाना। शहजादी, मेरा जमीर नहीं मान रहा। शहजादी से इतने दुख झेलने के बाद झूठ बोलना सही है क्या? शायद उनका वहां जाना मुनासिब होगा, ताकि उनका सोख खत्म हो जाए और सुकून मिल जाए उन्हें। पाशा के पहलू में जाते वक्त तुम्हारा ज़मीर कहाँ था? अगर उसे मालूम हो गया तो कब्र का मजार बनवा देगी। आका को भी मालूम हो जाएगा। एक और मुसीबत आ जाएगी। वैसे भी शादी जल्द होने वाली है। उसे कब्र का मालूम हो गया तो वो कभी शादी नहीं करेगी। वेनेदी की खातून तो एक तरफ, यहूदी राफेल भी गायब है। तुम लोगों से एक खातून काबू नहीं हो सकी। वल्लाह, मैं भी अभी आपसे सुन रहा हूँ पाशा। आपको मालूम है कि मलिका के अचानक जाने की वजह से मैं हरम में कितना मसरूफ रहा। कैसे हो गया ये सब, जबकि इतने मुहाफिज थे वहाँ पर। मैं जब वहाँ पहुँचा तो कोई नहीं था, ना ही कोई मुहाफिज ना ही खातून। लगता है शाह सुल्तान ने गायब करवा दिया उन्हें। दोनों खवातीन हाथ से निकल गई हमारे। अब हम क्या करेंगे? पुरसुकून रहो। शाह सुल्तान मासूम नहीं, इसका सबूत फराहम करने के लिए जरूर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा मैं, इंशाअल्लाह। इजाजत दें पाशा। पाशा मोहतरम। कहो मरजान आगा। शाह सुल्तान आपसे अभी मिलना चाहती हैं। आओ। मलिका, क्या हुआ बताओ। आप खाना कहाँ तनावल फरमाएंगी, ये पूछने आई थी मैं आपसे मलिका। फारिहा मेरी जान निकालती गई है और तुम मुझसे खाने का पूछ रही हो। मलिका, आप जरूर एक दिन वापस जाएंगी। वो दिन आने तक
آپ کا طاقتور رہنا ضروری ہے. اور اگر نہ جا سکی فارحہ تو اپنی محبت، اپنی اولاد کو اگر دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا پھر؟ ایسا خیال اپنے دل میں ہرگز نہ لائے ملکہ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. فارحہ تم دیکھ ہی چکی ہو، جو آنکھیں میری طرف ہمیشہ محبت سے دیکھتی تھی وہ اب کتنی اجنبی ہو گئی ہیں میرے لیے. اگر وہ آنکھیں روٹ گئی مجھ سے تو پھر میرے لیے زندگی کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ برسوں سے جلنے والی یہ آگ ایک لمحے میں نہیں بجھ سکتی ملکہ. یقین کریں آپ کی غیر موجودگی طوفان برپا کر دے گی آقا کے دل میں. مصطفیٰ پاشا کہاں ہے؟ آقا، مصطفیٰ پاشا ایک وبائی مرض کا شکار ہو گئے ہیں. کیسے وبائی مرض میں استاد جلیبی؟ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں. ان کے پاؤں سوج گئے ہیں. تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے. استراحت فرما رہے ہیں آقا. حکمہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن پاشا کی حالت ٹھیک نہیں ہے آقا. ایاز پاشا، میرے خاص حکیم موشے ہامون کو خبر بھیجیں، مصطفیٰ پاشا کا فوراً معائنہ کریں. آپ کا جو حکم آقا. شہزادی، مجھے یاد فرمایا آپ نے؟ رستم پاشا، میں نے سنا ہے کہ تم اب تک میرے خلاف ہو. تم اپنی وفاداری جس سے نبھا رہے ہو سورم سلطان کا انجام تمہیں معلوم ہوگا. میں تمام شہزادیوں اور ملکاؤں کا یکساں وفادار ہوں شہزادی. بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں. خرم سلطان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے دل و جان سے کوششیں کر رہے ہو، میں جانتی ہوں. جیسا میں نے کہا شہزادی، میں ماضی میں جو بھی ہوا سو ہوا. میں ایک شہزادی کی حیثیت سے ہر بات بھولنے کے لیے تیار ہوں. آپ کی نوازش ہے شہزادی. لیکن خرم سلطان کو تم اپنی زندگی سے نکال دو. آقا نے جو بھی سلوک کیا، خرم دوبارہ ان کے پاس نہیں آئے گی. اس لیے اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے تمہیں کس کے ساتھ چلنا ہے اب یہ منتخب کرنا ہوگا، اور یہی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوگا. عیسائی دنیا میں ہنگامہ برپا ہے آقا. شاکلین اپنی بدترین شکست کا ذمہ دار فرانسوا کو ٹھہرا رہا ہے. پوپ کا بھی یہی خیال ہے، اس لیے کہ صلیبی لشکر کی اس نے مدد نہیں کی تھی. فرانسوا کی عقل ٹھکانے آ گئی لیکن کوئی فائدہ نہیں. اسے کئی مرتبہ پیغام بھیجا گیا ہے. معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد
तमाम खुसूसी तजारती मरात वापस ले ली जाएंगी। आका वेनेदिक के सफीर मुलाकात के मुंतजिर हैं। शायद वो कोई सुलह का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें बहुत इंतजार करना होगा पाशा मोहतरम। वेनेदिक वालों ने हमारी दोस्ती का दामन एक बार फिर छोड़ दिया। लुत्फो पाशा सच कहते हैं, कतन कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ताजिरों को भी पनाह नहीं दी जाएगी। खादिम सुलेमान पाशा की कोई खबर है क्या? मेरा ख्याल है वो मिस्र पहुंच गए होंगे आका। उनकी खैरियत की खबरों से हमारी खुशी दुबाला हो गई है। हाला, फौरन उन्हें खबर भेज दी जाए, वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। उन्हें मैं खुद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आका, एक मसला और अर्ज करना चाहता हूँ। मालूम है कि हुरम सुल्तान के फलाही इदारे में मसरूफ हूँ। काफी हद तक काम मुकम्मल हो गया है आका, तकरीबन आखिरी मराहिल में है। वो कब तक तशरीफ लाएंगी मेरे आका? बाद में उस्ताद चलेगी, बाद में। यहां जो लोग मौजूद हैं ये बात सुन लें कि वजीर अव्वल हुसरैफ पाशा के साथ मैंने अपनी हमशीरा खजीना सुल्तान की शादी का फैसला किया है। जुमेरात के दिन निकाह होगा, खैरियत का वसीला हो। मेरे आका, हुरम सुल्तान को जिला वतन कर दिया है सुना है। अब वो कभी नहीं आएंगी। वो इसी वजह से दिखाई नहीं दे रही हैं। हरम को अब हफीफा खातून ही संभालेंगी। लड़कियों, कितनी बार कहा है फजूल में यूं मत खड़ी रहा करो। अफीफा खातून, हुरम सुल्तान कहाँ चली गई हैं? क्या वो अब नहीं आएंगी? तुम्हें इससे क्या खातून, अपना काम करो। जुमेरात के दिन खजीना सुल्तान का निकाह और रुखसती है। वक्त नहीं है, हमें फौरन तैयारियां करना होंगी। चलो, देर ना करो। अल्लाह अल्लाह, अब ये शादी कहां से आ गई आगा? मौसम बहार आने वाला है, फिर क्यों इतनी जल्दी कह रहे हैं? मैं समझ नहीं सका। कसम से मैंने भी यही कहा था आका से। माज़अल्लाह शकर आका को बहुत काम करना पड़ेगा। मलून, क्यों परेशान हो रहे हो तुम बेकार में? शहजादी के लिए परेशान होना तुम्हारा काम है क्या? अपने काम से काम रखो। दुरुस्त कहते हो तुम। हर कोई अपना काम करेगा तो ये महल जन्नत बन जाएगा, लेकिन नहीं, कोई बात ही नहीं मानता। याद रखो, अगर इसी तरह सब चलता रहा तो जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा एक दिन ये सब। मरजान साहब, ओ मरजान साहब, याद रखो इस हरम का आका मैं हूँ। तुम्हारा हुक्म ख्वाबगाह की राहदारी में चलता है। चलो जाओ यहाँ से। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ताल्लुकात मुनासिब रखता, क्योंकि तुम्हारा दौर अब खत्म हो गया। तुम आज हो, कल नहीं होगे। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से धमकी देने वाले? क्या बिगाड़ लोगे तुम? जरा मैं भी तो देखूं, क्या करते हो तुम? शकर आका, आका दीवान से आ गए हैं, उनके लिए खाना तैयार किया जाए। और वहाँ मुस्तफा पाशा बीमार हो गए हैं, उनकी हालत संगीन है। अल्लाह अल्लाह, अफसोस हुआ। क्या हुआ उन्हें? देख लेना, तुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा मरजान आगा।